Welcome back student in our online classes. We are studying subject science of class 5th. We are studying chapter 1 animals and habitats. In the previous video we studied about the characteristics of animals, their different size, shapes, feeding habitats of animals, movement in animals that swims, breathing habitats of animals. Now, in present, today we will study about the animals survive in different ways. Okay? Surviving in water. Water में animals कैसे survive करते हैं? We will talk about that. Crocodile is able to stay underwater without breathing for about an hour. This is because they stay motionless and reduce their heartbeat to 2 or 3 beats per minute to save energy. क्रोकोडाइल जो है वो वाटर में बिना ब्रीदिंग के रहते हैं, 1 घंटे के तक वो सर्वाइव कर सकते हैं. वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो मोशनलेस रहते हैं और वो अपनी हार्ट बीट को रिड्यूस कर देते हैं. वो अपनी 2 से 3 बीट जो है पर मिनट लेते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को सेव कर सकें. Now whales and dolphins have nostrils which are located on the top of their heads. They breathe while swimming near the water surface. They need only draw one breath after a very long time because their muscles and blood can store large amount of oxygen. Whale and dolphins have streamlined body shape to move easily in water. जो व्हेल और डॉल्फिन होती हैं वो एक बार में ब्रीथ करती हैं, एक बार में सांस लेती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नॉस्ट्रिल, और उसके बाद वो बहुत देर तक जो है वाटर में मूव करती हैं एंड देन उसके बाद फिर वो एक बार में सांस लेती हैं. इस तरीके से जब वो इस तरीके से सांस लेती हैं तो उनकी जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भर जाती है, जिसकी हेल्प से वो बहुत देर तक अपने आप को बिना सांस लिए पानी में मूव कर सकती हैं. Seals, sea lions and walrus are mammals which are able to shut their nostril when in water. sea lion and walrus जो होते हैं वो वाटर में जब जाते हैं तो अपनी नॉस्ट्रिल को बंद कर देते हैं. All 4 limbs of seal, sea lions and walrus are flipper for swimming. They have streamlined body shape. Okay, इनकी भी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है और इनके जो 4 limbs होते हैं, जो इनके 4 पैर होते हैं, जस्ट लाइक दिस, इसकी हेल्प से ये पानी में स्विमिंग करती हैं. नाउ स्विमिंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स. Animals living in cold climate are surviving in winter need to protect themselves from the cold. They generally have thick fur or a thick layer of fat covering them. Penguins are found in a cold region. They are able to keep themselves warm because they have a feather coat. They protect their bodies from wind and water. The coat covers their bodies right down to their legs. There is also a layer of fat under the feather coat to keep them warm. अब जो कोल्ड क्लाइमेट्स में जो सर्वाइविंग होती है उसके लिए बेसिकली उनको नीड होती है कि उनके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फैट हो ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सकें. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पेंगुइन विच इज़ फाउंड इन कोल्ड रीजन एंड दे हैव अ फेदर कोट एंड अ लेयर ऑफ बिग फैट ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सकें. Now the polar bear are found in Arctic regions where it is very cold. They have a thick layer of water resistant fur and lots of fat. Okay, polar bear जो होते हैं उनकी भी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर होता है और वो फर वाटर रेसिस्टेंट होता है, उस पर पानी का असर नहीं होता है और बहुत सारी फैट होती है जिसकी हेल्प से वो अपने आप को ठंड के रीजन में सर्वाइव करने लायक बनाते हैं. Now, a hibernation, a long winter sleep. During winter, some animals will hibernate or go to sleep in burrows or caves. Okay, their body temperature drops, their heart beats slower, and they breathe slower too. They get the energy they need from fat stored in their body before winter. These animals get up from their sleep in early spring. Some animals which go into hibernations are bats, hedgehogs, ground squirrels and bears. अब जो कुछ एनिमल्स हैं जस्ट लाइक बैट, ग्राउंड स्क्वायरल्स और बियर्स, ये हाइबरनेशन में जाते हैं और हाइबरनेशन एक ऐसी लॉन्ग स्लीप है जिसमें वो अपने आप को जिसमें वो सो जाते हैं
बहुत टाइम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक कि उनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती है सर्वाइविंग की, तब तक वो उस लंबी स्लीप में रहते हैं और वो अपनी जो है हार्ट बीट उसको रिड्यूस कर देते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को भी वो कम कर देते हैं ताकि वो अपने उस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। सर्वाइविंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स, estivation is the phenomenon in which animals spend under dormant conditions during high temperature period of the year or during the summer season. Thus it is referred as to summer sleep. एस्टिवेशन को हम समर स्लीप भी कहते हैं, जस्ट लाइक एज अ हाइबरनेशन। ये भी एक हाइबरनेशन का ही एक पार्ट है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही, जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से किसी गड्ढे में अपने आप को रख लेते हैं और वो अपनी जो हार्ट बीट होती है उसको भी थोड़ा रिड्यूस करते हैं और अपने आप को वो कूल करते हैं स्वेटिंग से, पैंटिंग से और थ्रोट फ्लटरिंग से। यानी कि वो जब वो पसीना उनको होता है या फिर जब वो हाँफते हैं तो इस तरीके से वो अपने आप को ठंडा रखते हैं उस गर्म हाई टेम्परेचर के टाइम में। और जब उनका मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग और इवनिंग जो उनके लिए अच्छी होती है, उस टाइम वो अपना शिकार करते हैं या उस टाइम वो अपने आप को फूड देते हैं, अपना फूड लेते हैं। इस तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। Camels have thick fur on the upper surface of their body to protect them from the sun. कैमल जो होते हैं वो उनके बिग हम्प होते हैं, कुबड़ होता है जिसमें वो फैट को स्टोर करते हैं, जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा जब उनको फूड नहीं मिलता है तो वो उसी फैट का यूज़ करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उनके बहुत ही थिक फर होते हैं, बहुत ही मोटे फर होते हैं पैर में, ताकि उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीट में रेगिस्तान में चलने लायक बन सके। स्किमेटर हॉर्न्स ऑरिक्स जो होते हैं वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा रेज़ कर लेते हैं, जिसकी जैसा कि साइंस कहता है कि जब हॉटर प्लेस में जो हीट होती है वो हॉट प्लेस से कूल प्लेस की तरफ जाती है। तो जो ऑरिक्स होते हैं उनकी जो टेम्परेचर होता है जब वो हाई कर लेते हैं तो वो हीट को रिमूव करते हैं और वो हीट जब रिमूव करती है तो वो धीरे धीरे अपने आप को कूल करते जाते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रिच जो होता है उसकी भी बॉडी जो है वो फेदर से कवर्ड होती है ताकि वह सन की हीट से अपने आप को बचा सके। स्नेल्स जो होते हैं सीक्रेट म्यूकस, वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं जिसकी हेल्प से वो हॉट और ड्राई सीजन में अपने आप को सरवाइव कर सकें और उस सराउंडिंग में वो मॉइस्चर के थ्रू अपने आप को सेव करते हैं। So students, this is your video in which we studied about the survival of animals in different ways. Okay, revise it, learn this, and we'll see you in the next video. Till then, bye bye, stay blessed.